Hello students, let's discuss some important questions from is matter around us pure of class 9. So the first question is, what is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture? Homogeneous and heterogeneous mixtures के बीच क्या difference होता है? First of all, you have to write or define the definition of homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures in which the constituents are uniformly distributed all over the mixtures. Composition homogeneous mixtures का क्या होता है? Uniform होता है. In case of heterogeneous mixtures, constituents are not distributed uniformly. Next, separation of constitution in homogeneous mixture. Its constituent cannot be separated easily. For this, we require special methods. But in case of heterogeneous mixtures, its constituents can be easily separated by simple method. Examples of homogeneous mixture: alloys, air is also a homogeneous mixture, soft drinks, vinegar, ये सारे आपके homogeneous mixtures में आएंगे. Heterogeneous mixture में mixture of sand and iron, mixture of oil and water, mixture of chalk powder and water. These are the examples of heterogeneous mixture. Now let's discuss what is the difference between true solution and colloid. As you know, true solution is what? Homogeneous mixture. But colloid is what? Heterogeneous mixture. It's appeared to be homogeneous, but actually colloids are what? Heterogeneous mixture. True solutions के particle size जो होते हैं वो smaller than 1 nanometer in diameter होते हैं, and colloids के जो particle size होते हैं that is range between 1 to 100 nanometer in diameter. True solution does not show Tyndall effect, but colloids show Tyndall effect. Clear? Now, next question. Define solution and give an examples of gas in liquid solution and gas in gas solution. So, how can you define solution? Solution is what? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay. So, solution एक आपका homogeneous mixture है and it is a mixture of what? Two or more substances. And you have to give an example of gas in liquid solution. Okay. So this will be gas in liquid solution like aerated drink, in which carbon dioxide which is a gas which is dissolved in water. So this is an example of aerated drink, and air is also a mixture of gas in gas. Okay. Now next question. Question number 4. Identify the following mixture, heterogeneous mixture from following. अच्छा. Some options are given. इनमें से आपका heterogeneous mixture क्या होगा? Air आपका homogeneous mixture होता है. Soda water भी आपका homogeneous mixture होता है. Soap solution आपका heterogeneous mixture है, और brass जो है आपका एक alloy है, and alloy आपका homogeneous mixture होता है. Clear? Next. Write two components of colloidal solution. Give an example. Next question. दो components क्या होते हैं colloidal solution में? दो phase होते हैं, दो components होते हैं colloidal solution का. That दो phases, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase को आप बोल सकते हो कि solute है, dispersion medium आपका solvent की तरह act करता है. And you have to give an एग्जाम्पल, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें सॉलिड क्या है बेटा? डिस्पर्स फेज है, एंड लिक्विड जो है बेटा इस केस में डिस्पर्जन मीडियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फॉलो colloids फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, फ्रॉम सम क्वेश्चंस आर, सम ऑप्शंस आर गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर colloids. कॉपर सल्फेट, आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया है. मिल्क आपका क्या है बेटा? कलोइड है. ओके. स्मोक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलोइड्स. मडी वाटर आपका कलोइड नहीं है, वो आपका जाएगा इसमें. नेक्स्ट सस्पेंशन में बटर आपका कलोइड है. शुगर सोल्यूशन इट्स नॉट ए कलोइड, या आपके ट्रू सोल्यूशन में जाएगा. फेस क्रीम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलोइड. सो मिल्क, स्मोक, मडी वाटर, बटर, फेस क्रीम आर colloids. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन द फॉलोइंग केसेस. अच्छा, फॉग में आपका डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड की तरह एक्ट करता है, डिस्पर्जन मीडियम आपका
सॉल्वेंट की तरह काम करता है कलर्स में। तो फॉग आपका क्या हो जाएगा, फॉग में डिस्पोज फेज आपके लिक्विड हो जाएंगे, डिस्पोजिंग मीडियम आपका गैस हो जाएगा। चीज़ में डिस्पोज फेज आपका लिक्विड हो जाएगा, डिस्पोजिंग मीडियम सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट कलर्ड जेमस्टोन, इसमें डिस्पोज फेज एंड डिस्पोजिंग मीडियम सॉलिड ही रहेगा। नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ स्टील इज 98% आयरन, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स। ओके, सो स्टील आपका क्या है बेटा, एलॉय है। ओके, ये उसका क्या दिया है, 98% उसमें आयरन है, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स है। सो दिस इज आइडेंटिफाई एज फिजिकल प्रॉपर्टी, और आपका स्टील जो एक एलॉय है विच इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। नेक्स्ट जिंक डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड with evolution of hydrogen gas and zinc reacts with HCl to form zinc chloride. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ, जब जिंक डिजोल्व हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ और आपका जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ। ये यहाँ पे आपका न्यू क्या हुआ है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट मेटेलिक सोडियम इज सॉफ्ट एनफ टू बी कट विद ए नाइफ। मेटल सोडियम जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग हियर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नेक्स्ट मोस्ट मेटल ऑक्साइड फॉर्म बेसिस ऑन इंटरेक्टिंग विथ वाटर। ओके, मेटल ऑक्साइड जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस बोला, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा, सॉरी सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। Next, state one instances where water undergoes physical change and one in which it undergoes chemical change. Okay, physical change जैसे कि water का आप बोल सकते हो evaporation हो रहा है या फिर freezing of water हो रहा है, that is an example of physical change. Chemical change electrolysis of water, जब हम electrolysis of water करते हैं तो वो split हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। So this is an example of chemical change. Next question, on heating calcium carbonates it get converted into calcium oxide and carbon dioxide. Okay, आप जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट कर रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इज CO2। सो यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस बने। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कैन यू प्रिपेयर एन एसिडिक एंड वन बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट formed in the above process? Yes, we can. देखो कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, जब डिजोल्व होगा वाटर में तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक सोल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड जब डिजोल्व होगा वाटर में वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, that is CO2 plus H2O give rise to H2CO3, that is carbonic acid which is acidic in solution. Next, राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मेटल एंड नॉन मेटल। देखो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, उनका शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल्स क्या है, मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर है। मैलिएबल मतलब हम उसको बीट करेंगे तो इट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, हम मेटल्स को स्ट्रेच करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है थिन वायर्स में। एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड नॉन मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट, classify the following substances into elements and compounds. Okay, Cu which is what, copper. Copper हमारा किस में आएगा बेटा, एलिमेंट में आएगा। नेक्स्ट सैंड, वो आपका मिक्सचर हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए एलिमेंट, नॉट ए कंपाउंड। H2O आपका कंपाउंड है वाटर। CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका बेटा आ जाएगा कंपाउंड में। NaCl, ओके, ये भी आपका आ जाएगा बेटा कंपाउंड में। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl दिया गया है, ओके, दैट विल ऑल्सो कमिंग अंडर कंपाउंड। नेक्स्ट जिंक आपका आ जाएगा
एलिमेंट्स में, वुड आपका ना ही एलिमेंट्स और कंपाउंड होगा, फिर आपका F2 दिया है वो एलिमेंट्स में क्लासीफाई हो जाएगा, Hg भी आपका एलिमेंट्स में क्लासीफाई हो जाएगा, O2 दिया है दैट इज ऑल्सो क्लासीफाइड अंडर एलिमेंट्स, एंड आपका डायमंड आपका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज एलिमेंट हियर. क्लियर? Which of the following are not compound? Okay, chlorine gas कंपाउंड नहीं है, ठीक है. आयरन आपका भी कंपाउंड नहीं है. पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl which is a compound. Iron sulfide is also a compound. Aluminium is not a compound. Next, iodine is also not a compound. Okay. नेक्स्ट, कार्बन भी आपका कंपाउंड नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स है. कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ ए कंपाउंड. सल्फर पाउडर आर एलिमेंट्स, दिस आर नॉट कंपाउंड. क्लियर? नाउ टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बीच क्या डिफरेंस है? मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर होते हैं इन एनी प्रपोर्शन और इसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता. लेकिन कंपाउंड्स क्या है? Two or more elements combined together in fixed proportion by mass is called compound. Composition मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, लेकिन कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन होता है यहाँ पे ईच सब्सटेंस जो होते हैं ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं मिक्सचर्स वो अपना कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो होता है वो अपना प्रॉपर्टीज़ पूरा डिफरेंट दिखाता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. ओके. नेक्स्ट, मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं बाय फिजिकल मेथड, लेकिन कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड. उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. क्लियर? थैंक यू.